हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आपका स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। वी वर डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन फॉर मेंस in the last lecture, and so far we had decoded the syllabus of preliminary examination. We have also made a lecture separately on how to calculate scores for your prelims examination. How does UPSC calculate score for your preliminary examination? That also we have discussed. Now coming to the syllabus of mains, we had already discussed the essay and the language paper. Today we are also we have already discussed paper 1 का syllabus. Now today we are going to discuss paper GS2 का syllabus, जो कि paper 3 कहलाता है. ठीक है, अब GS2 का syllabus अगर हम देखेंगे, UPSC has very specifically specified that it is governance, constitution, polity, social justice and international relations. सो जो भी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट एक आईएएस ऑफिसर की जॉब में होता है या आईपीएस या आईआरएस की जॉब में होता है, वो पूरी रिक्वायरमेंट आपके GS2 में आ जाती है, जो पेपर 3 है. गवर्नेंस, कैसे गवर्न करोगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को. कॉन्स्टिट्यूशन को जाने बिना तो आप गवर्न कर ही नहीं सकते. पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर. Okay, so if you choose IFS as your specific, if you prefer IFS, अगर आप अपने प्रेफरेंस में IFS डालते हो तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट इज द सिलेबस? द सिलेबस सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. Now when we talk about here in the Indian Constitution वाला टॉपिक, यहाँ पर आपको हेल्प करेगा आपके एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट 6 चैप्टर्स. ओके, सो एम लक्ष्मीकांत बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, द लेटेस्ट एडिशन, फिलहाल तो 6th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है, तो उसके आपको जो फर्स्ट 6 to 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं इधर. ओके, एंड द इंटायर पेपर 2 का आप एम लक्ष्मीकांत भी रेफर करेंगे. दिस इज अ मस्ट टू हैव बुक, एंड प्लस विद दैट यू विल रेफर टू एनसीईआरटी क्लास 11 to class 12. Okay, now here functions and responsibilities of union and states, issues, challenges related to federal structure, devolution of power and finances up to local levels and challenges. This topic again M Lakshmikant Foundation, NCERT Foundation, plus you have to team it up with the current affairs. आपको इसको ना current affairs के साथ मिलाकर तैयारी करनी है अपनी. Current affairs के लिए you can either refer to the Hindu newspaper or you can refer to the Indian Express newspaper, any one of them. कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेफर कीजिए और उसी के साथ आपको तैयारी करनी है. Now the best way can be, if when it comes to note making, yes, note making is important. What you can do to prepare these topics, keep a register separate for paper 3. पेपर 3 के लिए जो पेपर है GS2, इसका आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, wherein you will cover all the topics that you are studying for GS2 plus the current affairs based on those topics. For example, you are studying today about the judiciary, the Supreme Court. Supreme Court has a separate chapter in M Lakshmikant, and any important article or judgment or verdict that comes about Supreme Court from Supreme Court related to Supreme Court in the newspaper, please team it up in the same register. उसी रजिस्टर में आपका पेपर 2 का नोट्स भी हो जाएंगे स्टैटिक और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे. सेपरेट करंट अफेयर रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर यू कैन मेक एंड यू कैन इंक्लूड करंट अफेयर्स विद इन देम. Alright, that will help you a lot when it comes to revision. Revision की जब बात आती है ना, तो आप subject specific revision कर पाओगे. Now, every topic that you cover, make sure that you are solving PYQ based on that topic, pre का भी और mains का भी. For example, today you studied about the interstate council. ओके, अगर आज आपने इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा एंड ओके, और यू हैव स्टडीड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल. ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक आउट द लास्ट एटलीस्ट 5 years के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर and mains के question paper, and you can solve the question related to interstate council from those question paper as well. This way you will understand how questions can be framed from the topics that you study. जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं वो आपको समझ आने लगेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल वेरी क्लियरली in your attempt that you are giving understand from the beginning only कि
हाउ आई हैव टू स्टडी, मुझे किस तरीके से पढ़ना है, ये आप एकदम समझ जाओगे अगर आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक है जिसे आप टीम अप कर सकते हो करंट अफेयर्स के साथ। ओके, नाउ हियर आई वुड आल्सो रिकमेंड यू इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु। Okay, introduction to the constitution of India by D Basu, this one, and M Lakshmikant की जो किताब है, plus the NCERTs from class 11 to 12th of Pol Science, that I would recommend to you। मैं आपको ये तो recommend पक्का करूंगी ही करूंगी, ये तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अगेन ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं, प्लस आपको द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को अपना बाइबल लेकर चलना ही है। And along with that previous year question paper last 5 year pre and mains की। And don't worry, सुनने में जितना heavy लगता है, जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे, इंप्लीमेंट करने लगोगे, टॉपिक वाइज व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, इट विल बिकम मोर एंड मोर इजी एंड सिंप्लीफाइड फॉर यू, एंड ड्यूरिंग योर रिविजन यू विल थैंक योरसेल्फ कि yes, thank you that I thank myself that I am solving that I had solved the PYQ along with the specific topics that I prepared with the current affairs। रिविजन में आपकी रिविजन इतनी जल्दी और फास्ट हो जाएगी कि आपके अंदर एंजाइटी नहीं बनेगी एग्जाम से पहले। Then we have salient features of representation of people's act। इसके ऊपर तो आप देखो, along with this you can do Google search also। कुछ टॉपिक्स को आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स है, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, वेलफेयर स्कीम्स, ये तो आपका करंट अफेयर्स है, होलिस्टिकली करंट अफेयर्स वाला टॉपिक। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, एनजीओज का रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल, ऑल ऑफ दिस ये आपका कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर प्लस एम लक्ष्मीकांत बुक से। कॉसाई जुडिशियल बॉडीज, स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ओके, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पे नजर रखनी है। ठीक है, एंड आपको PIB जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द गवर्नमेंट मीडिया वेबसाइट, दैट यू कैन फॉलो बिकॉज वहां पर नेबरहुड रिलेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। Role of civil services in a democracy, all these topics are really important, जिसको आप, and always remember, please study topic wise, that is the benefit and wonderful usage of the syllabus that you have। हमेशा टॉपिक वाइज पढ़िएगा, टॉपिक वाइज पढ़ने से आपको ईज हो जाएगा, आपका सिलेबस भी टाइम से खत्म होगा और बड़ा स्ट्रैटेजिकली और सिस्टमैटिकली स्मार्टली आप अपना सिलेबस कर सकोगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। नाउ अनअकैडमी प्लस इज लॉन्चिंग न्यू बैचेस फ्रॉम 5th of June and 8th of June। ये आपके नए बैचेस जून के मिड से, एग्जाम के बाद से, प्रीलिम्स 2022 के बाद से वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैचेस। Now the question is why Unacademy? Simple reason is in 2020 from Unacademy there were 170 plus toppers, and in 2021 178 plus toppers, and do you know 2018 में we had the topper Nandini Maharaj ma'am, ठीक है, and she cleared UPSC with a very good rank, and she was already an educator on Unacademy Plus. So on Unacademy Plus the educators that you have, they are not just experienced, they have what it takes to understand UPSC's set and strategy of covering the entire syllabus. Now because of their experiences, it becomes really easy for the aspirants and the students to cover up their syllabus without anxiety, because anxiety एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी सालों की तैयारी को खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। तो अनअकैडमी प्लस पर जो मेंटर्स हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लेकर आए हैं, जिससे वो आपको ट्रेन करते हैं, आपको गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। Unacademy also launches the mains mentorship program. Now here we are not just preparing for from the perspective of prelims, we are preparing you from the perspective of mains and interview as well, and we are taking the guarantee of your answer writing skills as well। हम आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को भी ट्रेन करने की और उसको शार्प करने की गारंटी अनअकैडमी प्लस पर लेते हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 for the UPSC CSE learners is here, wherein you have to scan this QR code, click on enroll now and provide your details to enroll in this mentorship program। Also on Unacademy Plus from June 8, 11:59 PM, the prices will increase by 20%.
So hurry up, save up to rupees 16,000 on your UPSC CSE subscription, and also do not forget to use code ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription. Unacademy Plus पर we also provide you CSE assurance. That means आप अगर 2 साल का या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको अनअकैडमी देता है CSE अश्योर, यानी कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो अपना अटेम्प्ट देने के बाद, तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट अनअकैडमी के ऊपर होगा, यानी कि अनअकैडमी प्लस आपको एक्स्ट्रा 1 ईयर का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा अगर आप अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो। हरी अप, बुक योर सीट्स प्राइस हाइक होने से पहले। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए आप ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, ARPITA10। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए जून 8 एंड 15 जून से, एंड इफ यू आर अ 2024 एस्पिरेंट आल्सो, देन आल्सो यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे। आप इस नंबर पे कॉल करके फटाफट से आप जो भी डिटेल्स आप जानना चाहते हो बैचेस के बारे में वो जान सकते हो टीम से डायरेक्टली। एंड ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, including those who have themselves cleared this examination, are here on Unacademy Plus to make your journey smooth and easy.